میری زندگی کی گاڑی جیسے تیسے چل رہی تھی۔ گھر میں ساس کا ہر وقت کا روک ٹوک اور نند کا ہر بات پہ طنز یا انداز میرے صبر کا امتحان لیتا رہتا۔ شوہر بیچارے صبح سویرے کام پہ نکل جاتے اور شام کو تھکے ہارے لوٹتے۔ ہماری ضروریات تو پوری ہو جاتی مگر وہ سکون اور خوشحالی کہیں دور تھی۔ میرے دل میں مائی سغرا کے لیے بہت ہمدردی تھی جو ہمارے پڑوس میں ایک بوسیدہ سی جھوپڑی نما گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ساس مجھے اکثر کہتی کہ ایسی عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کیا کرو، وہ جانے کس حال میں رہتی ہے اور کیا پتہ کوئی جادو ٹونا کرتی ہو۔ میں چپ چاپ سن لیتی مگر میرا دل مائی کے لیے تڑپتا رہتا۔ ایک دن دوپہر کو جب گھر میں سب اپنی اپنی دھن میں مگن تھے، میں چپکے سے دروازے کی اوٹ سے نکلی اور مائی کے گھر کی طرف چل دی۔ ان کے گھر کا صحن بالکل ویران تھا، بس ایک پرانا آم کا درخت اپنی شاخیں پھیلائے کھڑا تھا۔ مائی ایک چارپائی پہ لیٹی کر آ رہی تھی۔ ان کے بدن پہ بخار کی شدت تھی۔ میں نے دروازے پہ دستک دی تو وہ مشکل سے اٹھیں اور مجھے دیکھ کے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک سی آئی۔ میں نے جلدی سے قریب جا کے ان کا سر تھپ تھپایا اور کہا، مائی یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ آپ نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ مائی نے دھیرے سے کہا، بیٹی تم کیوں آئی ہو یہاں؟ میرے گھر کی نحوست تمہیں لگ جائے گی۔ میں نے کہا، مائی ایسی باتیں نہ کریں، میں تو صرف آپ کا حال پوچھنے آئی ہوں۔ میں نے ان کے لیے گھر سے کچھ کھانا بنایا تھا جو میں اپنے بیگ میں چھپا کے لائی تھی۔ میں نے وہ کھانا نکالا اور انہیں پیش کیا تو وہ غصے سے بھر گئیں اور کہنے لگیں، میں مانگنے والی نہیں ہوں بیٹا، میں نے پوری زندگی محنت کی ہے اور آج بھی اگر یہ بدن ساتھ دے تو میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ میں نے ان کی منت کی کہ یہ احسان نہیں، صرف ایک پڑوسی کا حق ہے، مگر وہ اپنی بات پہ اڑی رہیں۔ ان کی خودداری دیکھ کے میرا دل بھر آیا۔ میں نے سوچا کہ اب میں خاموشی سے ان کے گھر کے کام کر دیا کروں گی تاکہ انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ میں نے اٹھ کے صحن میں پڑا کچرا صاف کیا اور برتن دھونے لگی۔ مائی مجھے دیکھ کے بار بار منع کر رہی تھی لیکن میں نے ایک نہ سنی۔ جب شام ہونے لگی تو ساس کی دیوار سے آواز آئی تو میں گھبرا کر واپس بھاگی۔ راستے میں نند نے مجھے دیکھ لیا اور گھر پہنچتے ہی طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ ساس سے کہہ رہی تھی کہ بھابھی پھر اس منحوس بڑھیا کے گھر گئی تھی۔ ساس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ خبردار جو اب وہاں قدم رکھا، تو میں نے سر جھکا کے سب سہ لیا۔ لیکن میرے دل میں مائی کی وہ تکلیف دہ حالت اور ان کی وہ خودداری نقش ہو کے رہ گئی تھی۔ رات کو میں نے سوچا کہ کل میں بچوں کے ہاتھ کچھ کھانے پینے کا سامان بھجواؤں گی تاکہ مائی انکار نہ کر سکے، اور پھر مجھے بھول گیا کہ میں نے کوئی سامان بھی بھجوانا تھا اور ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ رات میں مجھے یاد آیا تو اگلی صبح میں نے بچوں کو تیار کیا اور انہیں کہا کہ یہ چیزیں مائی سغرا کو دے آنا اور کہنا کہ ان کی بیٹی نے بھیجا ہے۔ پھر کچھ دن بعد میں مائی کے پاس گئی اور ان سے زندگی کی سب سے بڑی سچائی جاننے کی ضد کی۔ مائی سغرا کے گھر کی وہ بوسیدہ دیواریں جیسے مجھے اپنی کہانی سنا رہی تھیں۔ میں نے ان کے قریب بیٹھ کے ان کی زندگی کا وہ حصہ سنا جو اب تک ہر کسی سے پوشیدہ تھا۔ مائی نے بتایا جب ان کے چاروں جوان بیٹے انہیں تنہا چھوڑ کے شہر کی رنگینیوں میں گم ہوئے تو ان پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ دن بھی کیا دن تھے جب وہ صبح سویرے اٹھ کے لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی اور کپڑے دھوتی تاکہ 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو سکے۔ ان کی کمر جھک چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی جواب دے رہی تھی۔ وہ اکثر روتے ہوئے کہتی کہ بیٹی، ایک عورت کا اپنی عزت بچا کے تنہا جینا کتنی بڑی جنگ ہے۔ اسے مجھے وہ سارے دردناک قصے سنائے کہ کیسے وہ سخت گرمی میں بھی آم کے اس درخت کے سائے میں بیٹھ کے اپنی تھکان مٹاتی تھی۔ وہ درخت ہی تھا جس کے سائے میں اس نے اپنی جوانی اور پھر بڑھاپا گزارا تھا۔ میں خاموشی سے سن رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کیسے ایک انسان اتنی مشکلات کے باوجود بھی اپنی خودداری کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ میں نے پھر وہی کوشش کی کہ انہیں کچھ مالی مدد کر دوں یا گھر کے کچھ کام کر کے ان کا بوجھ ہلکا کر دوں، لیکن مائی سغرا کا رویہ ہر بار وہی ہوتا۔ وہ سختی سے منع کر دیتی اور کہتی کہ مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ میں نے ان کے گھر کے برتن دھوئے تو وہ مجھ سے لڑ پڑی کہ تم یہ کام کیوں کر رہی ہو، میں خود کر سکتی ہوں۔ ان کی اس خودداری نے میرے دل میں ان کے لیے احترام اور بڑھا دیا۔ میں اب روزانہ بہانے سے ان کے گھر جانے لگی تھی۔ میرا اصل مقصد تو ان کی مدد کرنا تھا، لیکن وہ کسی بھی حال میں کچھ قبول کرنے کو تیار نہ تھیں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ شدید بخار میں مبتلا تھیں، ان کا پورا جسم تپ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس درخت کے نیچے بیٹھی کچھ بڑبڑا رہی تھیں۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس چلیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان کی طبیعت خراب دیکھ کے اپنے بچوں کو بھیجا کہ وہ ان کے لیے دودھ اور روٹی لے آئیں، لیکن مائی نے وہ بھی واپس کر دی۔ میں گھر میں واپس آئی تو ساس اور نند کے تانے میرا استقبال کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگی تم اس بڑھیا کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ کہیں وہ تمہارے گھر میں کوئی بیماری نہ لے آئے۔ میں ہمیشہ ساس کی باتوں کو ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی کیونکہ میرا دل مائی کے اس ویران گھر میں الجھ کے رہ گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں مائی کی بیماری میں ان کی مدد ضرور کروں گی۔
چاہے مجھے کتنا ہی منع کیوں نہ کریں۔ اس دن بھی میں نے چپکے سے ان کے صحن کا کچرا صاف کیا اور پانی بھر کے رکھا۔ مائی لیٹی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی، ان کے آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ ان کے گھر میں کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ درخت کی سرسراہٹ ایسی لگتی تھی جیسے کوئی میرے کان میں کچھ کہہ رہا ہو۔ میں ڈر کے وہاں سے نکل آتی، لیکن اگلے ہی دن پھر میرا قدم مائی کے گھر کی طرف اٹھ جاتا۔ یہ کشمکش میری زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ مائی سغرا کی وہ خودداری اور ان کی وہ ادھوری کہانی میرے ذہن پہ چھائی رہتی، اور مجھے اس بات کا احساس بھی نہ تھا کہ میں ایک ایسی راہ پہ نکل پڑی ہوں جس کا اختتام کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس رات گرمی کا زور کچھ زیادہ ہی تھا اور مائی سغرا کی طبیعت بہت خراب تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ گھر میں اکیلی ہوں گی اور بخار کی شدت میں انہیں پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے ساس اور نند کے سونے کا انتظار کیا، اور جب گھر میں سب خاموش ہو گئے تو میں نے دبے پاؤں دروازہ کھولا اور مائی کے گھر کی طرف چل دی۔ ہمارے گھروں میں بس ایک دیوار تھی، آسمان پہ بادل چھائے ہوئے تھے اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی۔ مائی کے گھر پہنچ کے دیکھا تو صحن میں وہ آم کا درخت عجیب سا لگ رہا تھا۔ ہوا نہ ہونے کے باوجود اس کی شاخیں ہل رہی تھیں۔ میں نے مائی کو آواز دی تو وہ نیم خنودگی کی حالت میں چارپائی پہ پڑی تھی۔ ان کا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ان کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے انہیں پانی پلایا۔ بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھ کر مدھم آواز میں کچھ کہا مگر میں سمجھ نہ سکی۔ اس وقت اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے صحن میں میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا اور میں سہم کے رہ گئی۔ مائی اس وقت بھی درخت کی طرف دیکھ کے بڑبڑا رہی تھیں۔ ان کے آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور سکون تھا۔ میں نے مائی سے کہا، مائی آپ کیوں اس درخت کی طرف دیکھ رہی ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مائی نے میرا ہاتھ تھام لیا، ان کے ہاتھ بہت یخ تھے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ بیٹی یہ درخت خالی نہیں، یہاں ان کا بسیرا ہے جو دنیا والوں کو نظر نہیں آتے، مگر اب یہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے مائی کی بات کو بخار کا وہم سمجھ کے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن میرا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ میں نے وہاں بیٹھ کے کچھ دیر قرآنی آیات پڑھی تاکہ خود کو اور مائی کو تسلی دے سکوں۔ مائی نے مجھے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا اور کہا، یہاں شور مت کرو، وہ آرام پسند ہے۔ میں نے مائی کو وہیں آرام کرنے دیا اور خود صحن میں ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب درخت سے ایک عجیب سی سرسراہٹ کی آواز آئی جیسے کوئی بہت بڑا پرندہ اپنے پر پھڑپھڑا رہا ہو، میں نے اوپر دیکھا تو مجھے شاخوں کے بیچ کوئی سایہ لہراتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے جلدی سے نظریں نیچے کر لی، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے سر پہ کھڑا ہے۔ مائی اس وقت اٹھ کے بیٹھ گئی، ان کی طبیعت میں ایک عجیب سی بہتری دکھائی دے رہی تھی جیسے بخار کا زور کسی نے ایک پل میں ختم کر دیا ہو۔ انہوں نے مجھے کہا، تم یہاں سے چلی جاؤ، وہ وقت آ گیا ہے جو مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے واپس اپنے گھر کی طرف بھاگی اور ساری رات جاگ کے گزار دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مائی کی طبیعت اچانک کیسے سنبھل گئی اور وہ درخت کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی۔ صبح ہوئی تو مائی کے گھر سے وہی خوشبو آنے لگی جس کا چرچا پورے محلے میں تھا۔ وہ کیریاں توڑ توڑ کے اچار بنانے میں مصروف تھیں اور ایسی چستی تھی کہ جیسے کبھی بیمار ہوئی ہی نہ ہو۔ میں دور سے انہیں دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر اس رات ایسا کیا ہوا تھا کہ مائی کی زندگی کا نقشہ ہی بدلنے والا تھا۔ مائی سغرا کے گھر سے اٹھنے والی اچار کی وہ دل فریب خوشبو اب پورے محلے کی فضا میں رچی بسی تھی۔ ہر کوئی اس کے عجیب و غریب ذائقے کا دیوانہ ہو رہا تھا۔ میرے گھر کی دیواریں اس خوشبو کو روکنے میں ناکام رہتی تھیں اور ہر وقت میرا دل اس خوشبو کے سحر میں کھو جاتا۔ کچن میں کھانا پکاتے ہوئے جب میں اچانک رک کے اس خوشبو کو محسوس کرتی تو ساس کی آواز آتی کہ کہاں کھو گئی ہو، سالن جل رہا ہے اور تم یہاں مائی کے اچار کے خواب دیکھ رہی ہو۔ میں خاموشی سے چولہے کی آنکھ تیز کر دیتی اور اپنی ادھوری زندگی کے بارے میں سوچنے لگتی۔ میرے بچے اس وقت گھر کے صحن میں کھیل رہے تھے۔ چھوٹا بچہ بخار میں تپ رہا تھا اور میرے پاس اسے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنی نند کو دیکھا جو الماری میں اپنے کپڑے سجا رہی تھی اور میری طرف دیکھ کے مسکرا کے طعنہ دیا کہ تم تو دن بھر مائی کے گھر کے چکر لگاتی ہو، تم سے پیسے کیوں نہیں مانگ لیتی؟ وہ تو اب بدل گئی ہیں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اپنی آنکھوں میں اترتے آنسوؤں کو پونچھ لیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی کی تپش نے جان نکالتی تھی۔ میں نے بچوں کو گرم روٹی اور تھوڑی سی چینی دے کے سلا دیا اور خود صحن میں بیٹھ کے پرانے کپڑوں کو پیوند لگانے لگی۔ میرا ذہن بار بار مائی سغرا کی طرف بھٹک رہا تھا۔ وہ اتنی زیادہ کیریاں کہاں سے لا رہی تھیں جبکہ درخت ایک تھا۔
हमारे हालात सब ख़राब होने लगे थे। एक बार मैंने दीवार के साथ कान लगा कर सुनने की कोशिश की कि माई के घर से किसकी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ माई के हंसने की आवाज़ थी, जो किसी बड़े हजूम के दरमियान होती है। लेकिन वहाँ तो कोई ग्राहक नज़र नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद मैंने माई के घर जाने का प्लान बनाया तो सास ने मुझे रोकते हुए कहा कि खबरदार, जो आज इस मनहूस औरत के घर कदम रखा, मुझे तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने झूठ बोल दिया कि मैं सिर्फ बाजार जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही घर से निकली तो माई के दरवाजे पे जा पहुंची। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने अंदर झांका तो देखा माई सुगरा एक रेशमी चादर ओढ़े आम के दरख्त के नीचे बैठी थी। उनके हाथ में चांदी का चम्मच था और वो अचार के मर्तबानों को किसी खास अंदाज में तरतीब दे रही थी। अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा कि उनकी आंखों में वो पुरानी बीमारी वाली झलक बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हैबत थी जिससे मेरा दिल लरज़ उठा। मैंने कामते हुए सलाम किया तो उन्होंने जवाब देने के बजाय मुझे घूरा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने लरजती हुई आवाज़ में कहा कि माई, मैं तो बस आपका हाल पूछने आई थी। आपकी तबीयत अब कैसी है? माई ने एक सर्द आह भरी और कहा कि मैं अब ठीक हूँ और तुम भी ठीक हो जाओगी। जाओ अपने घर जाओ और अपनी सास को कहो कि अब माई सुगरा को किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। मैंने उनसे इसरार किया कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है अचार बेचने की? तो मुस्कुरा के बोली कि यह अचार नहीं है बेटा, ये मेरी मेहनत का फल है जो मुझे इस दरख्त ने दिया है। माई के घर के अंदर का मंजर कुछ और ही था। वहाँ पुरानी चारपाई की जगह एक सोफ़ा पड़ा था और दीवारों पे नया रंग हो चुका था। ये सब इतनी जल्दी कैसे मुमकिन हुआ? ये बात मेरे गले से नहीं उतर रही थी। घर आकर नंद ने फिर मुझे तानों के तीर मारे और कहा कि ज़रूर वहाँ कोई ख़जाना दबा हुआ है जो उस बुढ़िया को मिल गया है। मेरा शौहर शाम को जब घर लौटा तो उसके चेहरे पे मायूसी की परछाइयाँ थीं। उससे कहा, नौकरी में अब पहले जैसी बात नहीं रही और अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर का खर्चा चलाना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने उसे तसल्ली दी मगर अंदर से खुद टूटी हुई थी। रात के अंधेरे में जब मैं अपने कमरे की खिड़की से माई के घर को देखती तो वहाँ दरख्त के साए में मुझे कुछ लरसता हुआ नजर आता, जैसे कोई काला साया माई के साथ खड़ा हो। मैंने आंखें मल के देखा तो कुछ ना था, लेकिन दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। माई अब मोहल्ले की किसी औरत से बात नहीं करती थी और ना ही किसी को अपने घर के अंदर आने देती थी। उनका अचार अब एक ख़ास ब्रांड बन चुका था और अमीर लोग गाड़ियाँ लेके उनके घर के बाहर खड़े होते थे। सास और नंद अब माई की दौलत देख के खामोश हो गई थी, लेकिन उनकी आंखों में हसद की आग थी जो हर रोज़ बढ़ रही थी। मुझे याद है एक दिन माई सुगरा ने मुझे बुला के कहा कि जब वक्त बदलता है तो इंसान को पहचानना मुश्किल हो जाता है। मैंने तब उनकी बात की गहराई को नहीं समझा था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि माई ने अपनी ज़िंदगी का सौदा किसी ऐसी ताकत से कर लिया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मैंने अपने बच्चों को माई के घर जाने से मना कर दिया था क्योंकि मुझे अब इस घर से डर लगने लगा था। क्या वाकई अचार का कारोबार इतना मुनाफा बख्श हो सकता है, या फिर माई के पीछे कोई आसेब का साया है जो उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी कर रहा है? ये सब हालात अब मेरी नींद उड़ा चुके थे और मैं एक ऐसे अंधेरे में चल रही थी जहाँ रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। माई सुगरा के घर में होने वाली तब्दीलियाँ मेरे लिए किसी अजूबे से कम ना थी। एक तरफ मेरे घर में राशन और अद्वियात की कमी थी तो दूसरी तरफ माई का घर दिन ब दिन बदलता जा रहा था। मेरी नंद सारा दिन खिड़की में बैठी माई के घर आने वालों को देखती रहती और तरह तरह की बातें बनाती। एक दिन उससे चिल्लाते हुए कहा कि देखो भाभी, आज फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हैं माई के घर के बाहर और वो अंदर से बड़े बड़े नोटों के बंडल लेके निकल रही हैं। मेरी सास ने गुस्से से अपनी लाठी ज़मीन पे मारी और कहा कि ये बुढ़िया ज़रूर किसी चोरी या किसी गलत काम में मुलविस है। अचार तो महज एक ढोंग है। मैं अपनी जगह साकत खड़ी ये सब सुन रही थी। मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे और घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ तक ख़त्म हो चुकी थीं। मेरा दिल माई के पास जाने को मचल रहा था मगर उनकी वो हैबतनाक नज़रें मुझे रोक रही थीं। एक रात जब घर में सब गहरी नींद सो चुके थे तो मैं बच्चों को बिस्तर में छोड़ के दबे पाँव बाहर निकली। माई का घर खामोश था मगर वो आम का दरख्त चांदनी में किसी खौफनाक देव की तरह खड़ा था। मैंने देखा कि सहन में कोई रोशनी नहीं थी, फिर भी अचानक एक अजीब सी चमक नमूदार हुई। मैंने हिम्मत करके माई के सहन के छोटे से गेट को धकेला। वो गेट बगैर किसी आवाज़ के खुल गया। अंदर का मंजर देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। सहन में माई सुगरा अकेली नहीं थी, उनके इर्द गिर्द कोई नहीं था, मगर वो किसी से ऐसे बात कर रही थी जैसे सामने कोई खड़ा हो। उनके हाथ में वो चांदी का चम्मच था जिससे वो हवा में कुछ लहराती जा रही थी। फिर अचानक ज़मीन से अचार के मर्तबान नजर आए। मैं खौफ से थर थर आ रही थी। माई ने अचानक मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें पूरी तरह सुर्ख हो चुकी थीं और उनके चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें इंसानियत कम और दरिंदगी ज़्यादा थी।
میں نے लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटने की कोशिश की तो माई ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मैंने कांपते हुए कहा, माई मैं तो बस अपने बच्चों के लिए कुछ मांगने आई हूँ। वो हंसी और उनकी हंसी की आवाज़ दरख्त के पत्तों से टकरा के ऐसी गूंजी जैसे कई रूहें एक साथ चीख रही हों। माई ने मुझे करीब बुलाया और कहा, ये सब उस दरख्त का फैज़ है जो तुम देख रही हो, लेकिन याद रखना इसका मुआवजा भी अदा करना पड़ता है। मैं डर के मारे वहाँ से भागी और घर आके बिस्तर में छुप गई, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह उठी तो घर में खामोशी थी। मेरी सास और नंद के चेहरों पर एक अजीब सी हैरत थी। माई के घर के बाहर से शोर आ रहा था। लोगों का कहना था कि माई का अचार अब सिर्फ शहर में नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी सप्लाई हो रहा है। और वो अचानक इतनी अमीर हो गई थी कि उसने मोहल्ले में एक बड़ी कोठी खरीदने का फ़ैसला किया था। मैं अपने बच्चों को लेकर कमरे में बैठी रही और सोचती रही कि क्या मैंने जो देखा वो हकीकत था या कोई ख्वाब। मगर मेरे पास माई के घर से आई हुई एक छोटी सी कटोरी थी जिसमें वही लजीज अचार था। मैंने उसे खोला तो उसमें से केरियों की नहीं बल्कि किसी और ही चीज़ की खुशबू आ रही थी। एक ऐसी खुशबू जिसने मेरे घर के माहौल को बदल दिया। एक शाम जब मैं सहन में बैठी बच्चों के कपड़े समेट रही थी तो अचानक घर का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मेरे शौहर अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पे हवाएं उड़ी हुई थीं। वो हाँफ रहे थे, उनकी आंखों में वहशत थी। उन्होंने आते ही कहा कि आज उन्हें काम से निकाल दिया गया है, वो भी बगैर किसी वजह के। सास कमरे से बाहर निकली और उनका हुलिया देख के चीख पड़ी कि क्या मुसीबत आ गई है। मेरी नंद ने फ़ौरन माई सुगरा का नाम लिया और कहा कि ये सब उसी बुढ़िया की नहुसत है। जब से भाभी उसके घर जाने लगी है हमारे घर का सत्यानाश हो गया है। मैं अपनी जगह साकित खड़ी थी। बच्चों के रोने की आवाज़ें माहौल को मज़ीद बोझल कर रही थी। मेरी सास ने मुझे घूरते हुए कहा कि तुम उस मनहूस के पास क्यों जाती हो? देख लिया उसका असर। माई सुगरा का जादू अब हमारे घर तक पहुंच गया है। मैंने शौहर की तरफ देखा तो वो सोफे पे गिर पड़े। उन्होंने सर पकड़ लिया और बोले कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। मैंने दिल ही दिल में माई का नाम दिया और सोचा क्या वाकई माई के पास कोई ऐसा रास्ता है जो हमारी इस तारीकी को रोशनी में बदल सके। अगले दिन मोहल्ले में एक दावत का एहतमाम था। सारा मोहल्ला वहाँ जमा था। औरतें एक कोने में बैठ के माई सुगरा के बारे में चह मगोइयाँ कर रही थीं। मैं वहाँ से गुजरी तो एक औरत ने कहा कि माई सुगरा तो लगता है ज़मीन के नीचे से सोना निकाल रही है। इसका अचार नहीं है, ये कोई काला जादू है जिसके चक्कर में सारा मोहल्ला पड़ा हुआ है। दूसरी औरत ने सरगोशी की कि मैंने तो सुना है कि इसके घर से रात को अजीब सी चीखें आती हैं और वो किसी से बात करती है जो उसे नज़र नहीं आता। मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखा और कहा कि आप लोग क्यों किसी के पीछे पड़ी हुई हैं। माई बहुत नेक और खुददार औरत है, अगर उसे रिस्क मिल रहा है तो ये उसकी मेहनत और किस्मत है। आप लोगों को इससे क्या तकलीफ़। वो औरतें मुझे हकारत से देख के खामोश हो गईं, लेकिन उनकी आंखों में हसद की चिंगारियां साफ नजर आ रही थीं। मैंने वहां से निकलने में ही आफियत जानी मगर उनके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। घर आके मैंने देखा तो सास नंद के साथ मिलके माई की गीबत कर रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि तुम क्यों उसकी वकालत करती हो, कहीं वो तुम्हें भी तो नहीं सिखा रही ये सब। मैं चुपचाप किचन में चली गई मगर मेरा दिमाग फट रहा था। बच्चों को भूख लगी थी और घर में आटा तक ख़त्म हो चुका था। मेरी सास ने मुझे तंजिया कहा, जाओ अपनी उस सहेली से मांग लाओ खाना, वो तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजेगी। तुम भी तो अच्छे वक्त में उसे बहुत कुछ देती थी। उनके जुमलों ने मेरे दिल पे ज़ख्म लगाए लेकिन मैंने सब्र का दामन थामे रखा। उसी वक्त मुझे ख़्याल आया कि माई ने कहा था कि जब वक्त बदलता है तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि मेरा वक्त भी बदलने वाला था। मैंने बच्चों को थपकी दे के सुलाया और ख़ुद खिड़की के पास बैठकर माई के घर की तरफ देखने लगी। वहाँ आज फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आकर रुकी थीं। मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं माई से मिल कर रहूँगी और उनसे अपनी इस तकलीफ़ का हल मांगूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। मैंने सास के सोने का इंतज़ार किया और दिल में एक नामालूम से खौफ के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रात के 9 बज चुके थे और गली में सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने कदमों की चाप भी किसी धमाके की तरह सुनाई दे रही थी। मैंने डरते डरते अपनी चादर संभाली और माई सुगरा के घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। माई का घर आज कुछ ज़्यादा ही पुरस्कार लग रहा था। उनके सहन में लगे आम के दरख्त के पत्ते भी बगैर हवा की अजीब ही आवाज़ में थरथरा रहे थे। मैंने गेट को आहिस्ता से धकेला तो वो बिना आवाज़ के खुल गया। अंदर का मंजर देख के मेरे होश उड़ गए। माई सुगरा वहाँ मौजूद नहीं थी लेकिन सहन में एक देगची रखी थी जिससे उठने वाली भाप ने पूरे सहन को धुंधला कर रखा था।
मैंने करीब जाके देखा तो उसमें अचार नहीं बल्कि कुछ और ही उबाल आ रहा था, जिसका रंग खून की तरह गहरा था। मैं पीछे हटने ही वाली थी कि माई की आवाज़ आई, जो किसी बंद गार से निकल रही हो। उन्होंने कहा, तुम फिर आ गई बेटी। मैंने कांपते हुए कहा, माई मेरा शौहर बेरोजगार हो गया है, घर में फाके हैं, बच्चों का बुरा हाल है और मेरी सास मुझे जीने नहीं दे रही। माई ने मेरी तरफ देखा तो उनका चेहरा चांदनी में किसी भयानक चीज़ की तरह लग रहा था। वो बोली कि क्या तुम वो सब कर सकती हो जो मैंने किया? मैंने डरते हुए इस बात में सर हिलाया। मेरे करीब आई और उनके कपड़ों से मिट्टी की खुशबू आ रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दरख्त के बिल्कुल नीचे ले गई, जहाँ ज़मीन में एक छोटा सा गड्ढा खुदा हुआ था। माई ने कहा कि यह दरख्त वो है जिससे मुझे सब कुछ मिला है। अगर तुम इसके साथ वफादारी निभाओ तो तुम्हारे घर की तंगी भी खुशहाली में बदल सकती है। लेकिन याद रखना, यहाँ जो कुछ होता है वो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे तुम्हारी सास और नंद को, जो तुम्हारी हर हरकत पे नज़र रखती हैं। उन्होंने मुझे एक छोटा सा तावीज़ नुमा कपड़ा दिया और कहा कि इसे अपने घर के पिछवाड़े में दफन कर दो और बस इंतज़ार करो। मैं वहाँ से जब वापस आई तो मेरे जिस्म में एक अजीब सी लर्जिश थी। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने कान लगा के सुना तो अंदर मेरी नंद की आवाज़ आ रही थी, जो कह रही थी कि भाभी ना जाने रात को कहाँ गायब हो जाती है, कल मैं उसका पीछा करके रहूँगी। मैं जल्दी से कमरे में गई और बच्चों को सीने से लगा के लेट गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था कि अगर मेरी नंद ने मुझे देख लिया तो क्या होगा। सुबह हुई तो मैंने वही किया जो माई ने कहा था। मैंने वो तावीज़ घर के पिछवाड़े में दफन कर दिया। दोपहर को मोहल्ले की एक औरत घर आई और सास से कहने लगी, सुना है माई सुगरा तो अब अपना घर बेच के बड़े शहर मुंतकिल हो रही है। और उसके घर की कीमत सुन के सबके होश उड़ गए हैं। सास ने मेरी तरफ घूर के देखा और कहने लगी कि ये है तुम्हारी सहेली का कमाल, देखना किसी दिन उसका सब सच निकल आएगा। कुछ दिन बाद मोहल्ले में एक करीबी रिश्तेदार की शादी थी और पूरा मोहल्ला वहाँ जमा था। शादी का हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था और ख़वातीन के दरमियान गपशप का दौर चल रहा था। मैं कोने में बैठी अपनी सास और नंद की बातें सुन रही थी, जो माई सुगरा के बारे में ही थी। मेरी नंद ने ऊंची आवाज़ में कहा, आपने देखा है, माई सुगरा की तो काया ही पलट गई है। पहले तो वो केरियां बेच के बमुश्किल पेट पालती थी और अब उसके घर के बाहर महंगी गाड़ियां खड़ी होती हैं। मुझे तो लगता है कि वो किसी चोरी चकारी में मुलव्वस है या फिर कोई ऐसा काम कर रही है जो बताने के लायक नहीं। एक और औरत ने बात काटते हुए कहा, मैंने तो सुना है कि वो काला जादू करती है और उसके घर में रात को ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो इंसान नहीं होते। उस रात घर में अजीब सी बेचैनी थी। मेरे शौहर भी खामोश बैठे थे कि अचानक घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था, मगर दहलीज पे एक छोटा सा लिफाफा रखा था। मैंने उसे उठाया तो उसमें ढेरों रुपए थे, जो ना जाने कहाँ से आए थे। ये देख के मेरे हाथ कांपने लगे कि ये दौलत कैसे आई है। सास और नंद जब बाहर आईं तो मैंने फ़ौरन वो लिफ़ाफ़ा छुपा दिया, मगर मेरी नंद की तेज़ नज़रों से कुछ न बचा। उसने मशकूक अंदाज में कहा कि भाभी, आजकल आपके पास कहाँ से पैसे आ रहे हैं? आपके बच्चे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। मैंने हकलाते हुए कहा कि मेरे शौहर की जमा पूंजी है, मगर वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराई, जिसमें शक और हसद दोनों शामिल थे। माई सुगरा का दिया हुआ वो तावीज़ घर के पिछवाड़े में दफन था और मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरे घर की दीवारों के पीछे कोई पहरा दे रहा है। उस रात मुझे ख्वाब में वही आम का दरख्त नज़र आया, जिसकी शाखें मुझे अपनी तरफ बुला रही थीं और माई सुगरा का चेहरा चमक रहा था। मैंने बेदार होकर देखा तो पसीने से शराबूर थी। मुझे अब यकीन हो चला था कि माई की ये दौलत इस दुनिया की नहीं है, लेकिन मैं अब उस अमल से पीछे नहीं हट सकती थी, क्योंकि मेरे शौहर की नौकरी भी बहाल हो चुकी थी और घर के हालात एकदम से बदल गए थे। मेरी नंद की शक भरी नज़रों से बचना मेरे लिए रोज़ का मामूल बन चुका था। वो हर वक्त मेरी तलाशी लेने के बहाने ढूंढती रहती, जिससे मेरी घबराहट में इजाफा हो जाता। एक दोपहर जब सास और नंद घर से बाहर गई हुई थीं, मैंने मौका पाके माई सुगरा के नए घर का रुख किया। मैं अब इस राज को जानने के लिए बेताब थी, जिसने माई को झोपड़ी से कोठी तक पहुंचा दिया था। माई के घर के दरवाजे में पहुंच के मैंने देखा, वो एक मखसूस कमरे में बैठी थी, जहाँ चारों तरफ पर्दे लटके हुए थे और कमरे में एक अजीब सी भारी कैफियत थी। माई ने मुझे देखते ही पहचान लिया। वह पहले वाली बूढ़ी माई नहीं लग रही थी। उनके चेहरे पे एक अजीब सा सकून था, जो किसी दुनियावी दौलत से नहीं आता। उन्होंने मुझे करीब बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगी जो मैंने बरसों अपने सीने में दफन कर रखा था। माई ने बताया कि वो 40 दिन का वजीफ़ा कोई मामूली इबादत नहीं, बल्कि एक ऐसा मुआहदा था जिसका ताल्लुक उस आसेब से था जो उस आम के दरख्त में रहता था। माही ने अपनी आवाज़ को मद्धम करते हुए कहा कि इस वजीफ़े के 40 दिन मैंने बहुत कम खाया और बहुत कम बातें की। हर रात जब सन्नाटा होता तो वो साया मेरे सामने आता और मुझसे कुछ शराइत मनवाता।
मैंने उसकी हर बात मानी क्योंकि मैं अपने बेटों के बिछड़ने के बाद तन्हा हो चुकी थी और इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। माई ने बताया कि वो दौलत कहीं से आती नहीं थी, बल्कि मेरे कलाम पाक पढ़ने से मेरे छोटे से कारोबार में बरकत बढ़ गई। उन्होंने मुझे इंतबाह किया कि अब तुम भी इस रास्ते पे कदम रख दिया है तो पीछे मुड़ के मत देखना। तुम्हारे घर पे भी वही साए मंडलाने लगेंगे जो मेरे घर में बसेरा किए हुए हैं। मैंने ये सुना तो मेरा वजूद लरज़ उठा, मगर अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरे शौहर की नौकरी और बच्चों की खुशहाली इसी मुआहदे से जुड़ी थी। माई ने मुझे एक कागज़ दिया जिस पे कुछ अजीब व गरीब निशान बने हुए थे, और कहा कि ये वजीफ़ा अब तुम्हें करना होगा अगर तुम वाकई अपने घर को जन्नत बनाना चाहती हो। मैंने वो कागज़ थाम लिया और माई के कमरे से बाहर निकली तो बाहर का माहौल बदला हुआ महसूस हो रहा था। आसमान पे बादल छाए हुए थे और दरख्त के पत्ते किसी के हंसने की आवाज़ निकाल रहे थे। घर पहुंच के मैंने वो कागज़ अपने तकिए के नीचे छुपा दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद है और मुझे देख रहा है। मेरी नंद ने जब मुझे देखा तो उसने तंज़िया अंदाज में कहा, भाभी आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं, जैसे कोई ख़जाना मिल गया हो। मैं खामोश रही और अपने कमरे में जाके दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मेरी ज़िंदगी दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ मेरा घर और शौहर की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ वो पुरस्रार ताकत थी जिसका साया मेरे घर के हर कोने में फैल चुका था। मैं जानती थी अब वो 40 दिन मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होंगे और मेरी ज़रा सी गलती मुझे और मेरे ख़ानदान को किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। मगर मैं अब दौलत और खुशहाली के उस जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। माई सुगरा से मिलकर आने के बाद मेरी ज़िंदगी किसी तमाशे जैसी हो गई थी। घर में अब सब कुछ अचानक बदलने लगा था। मैंने वो वजीफ़ा शुरू कर दिया था जो माई ने मुझे बताया था। हर रात जब सब सो जाते मैं कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके लाइट ऑफ कर देती और माई के दिए हुए उस कागज़ को अपने सामने रख के अजीब व गरीब अल्फाज का विर्द करती। मेरा कमरा हर रात किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा बन जाता। दीवारों से अजीब सी दस्तकें सुनाई देती और मुझे ऐसा लगता जैसे कमरे के कोने में कोई साया खड़ा मुझे देख रहा है। एक रात वजीफ़े के दौरान मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बिस्तर के पास किसी ने ठंडी सांस ली हो। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और अपना विर्द जारी रखा। माई ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए आंख नहीं खोलनी, वरना असर ज़ायल हो जाएगा। मेरी सास को मेरे इस रवैये पर शदीद गुस्सा था। वह हर रोज़ मेरे कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटती कि तुम रात भर क्या करती हो, क्यों दरवाज़ा बंद करके बैठी रहती हो, कहीं कोई आसेब तो नहीं पाल लिया तुमने। उनकी बातों से मुझे उलझन होती, लेकिन अब मेरे पास वापस मुड़ने का रास्ता नहीं था। मेरे शौहर जो पहले परेशान रहते थे अब वो एक अजीब सी गफलत में थे। उन्हें ये खबर ही नहीं थी कि उनकी बीवी किस आग से गुजर रही है। एक रात मेरी नंद ने जिद करके मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की। वो कह रही थी कि भाभी आपके कमरे से अजीब सी जलने की खुशबू क्यों आती है, क्या कोई अमल कर रही हैं? मैंने अंदर से कहा, नहीं, मैं सिर्फ़ बच्चों के लिए दुआ कर रही हूँ। लेकिन वो मानने को तैयार ना थी। वो बार-बार दरवाज़े पे हाथ मार रही थी और मेरी सास धमकियाँ दे रही थी कि अगर दरवाज़ा ना खुला तो मैं इसे तोड़ दूँगी। मैंने कामते हुए विर्द जारी रखा क्योंकि माई ने कहा था कि अगर वज़ीफ़ा टूट गया तो उसका ख़मियाज़ा बुरा होगा। अचानक कमरे के अंदर का दर्जा हरारत गिर गया और मेरी मेज़ पे रखा हुआ पानी का ग्लास खुद ब खुद हिलने लगा। मुझे यकीन हो गया कि मेरे इर्द-गिर्द कोई है जो मेरे इस वज़ीफ़े की निगरानी कर रहा है। सुबह जब मैं बाहर निकली तो मेरी नंद ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जिससे वो मेरे अंदर का सारा राज जान गई हो। उसे तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा कि भाभी आपका ये वजीफ़ा तो बहुत असर दिखा रहा है। कल रात तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई आपके कमरे में हमसे बात कर रहा हो। सास ने भी मेरा बाजू पकड़ के कहा, खबरदार जो अब ये सब जारी रहा। कल रात मैंने तुम्हारे कमरे से किसी गैर इंसानी आवाज़ को सुना है। मैंने डरते डरते कहा कि अम्मा आपको वहम हुआ होगा, मगर मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वो वहम नहीं बल्कि हकीकत थी। मेरे बच्चे अब पहले से बेहतर थे और घर में खाने पीने की कमी नहीं थी, मगर इस दौलत और सुकून के बदले में जो खौफ मैंने ख़रीदा था वो हर दिन मेरी जान ले रहा था। मैंने उस दिन माई सुगरा को अपने घर के करीब देखा जो मुझे दूर से देख के मुस्कुरा रही थी। वजीफ़े के 15 दिन गुजर चुके थे और अब घर का माहौल मुकम्मल तौर पे बदल चुका था। मेरी सास और नंद का शक अब यकीन में बदलने लगा था। वह हर वक्त मेरे कमरे पर नज़र रखती थी। एक दिन दोपहर को जब मैं बच्चों को नहला के किचन में खाना पका रही थी तो अचानक मेरी नंद ने मेरे कमरे में घुस के तलाशी लेना शुरू कर दी। मैंने भाग उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो अलमारी से वो कागज़ निकाल चुकी थी जिस पे माई ने अजीब व गरीब निशान बना के देखे थे। वो कागज़ देखते ही उसके हाथ कांपने लगे
और वो चीख के बोली, भाभी ये क्या बला आपने घर में छुपा रखी है। सास भागती हुई वहाँ आई और उस कागज़ को देख के उनका रंग फक हो गया। उन्होंने मुझे बालों से पकड़ के दीवार के साथ लगाया और कहा, तूने हमारे घर में जिन्नात का बसेरा करवा दिया है। मैं रोते हुए मिन्नतें कर रही थी कि ये सब हमारे फ़ायदे के लिए है, मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार ना थी। इसी असना में घर के अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। किचन में पड़े बर्तन खुद ब खुद नीचे गिरने लगे और घर की दीवारों से ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर ज़मीन पे घसीटा जा रहा हो। मेरे बच्चे डर के मारे कोने में दुबक गए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मेरी नंद ने वो कागज़ जलाने के लिए माचिस जलाई तो जैसे ही आग कागज़ को छूने वाली थी, कमरे में एक ज़ोरदार धमाका हुआ और बिजली चली गई, मगर अंधेरा छा गया। सास और नंद मेरी चीखें सुनकर कांपने लगीं। मैंने अंधेरे में ही चीख के कहा कि इसे मत चलाना वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मेरी नंद ने खौफज़दा होकर वो कागज़ नीचे फेंक दिया और वो कागज़ खुद ब खुद मेरे कदमों में आके गिर गया। उस रात घर में कोई भी नहीं सो सका। हर कोई एक दूसरे से खौफज़दा था। मेरे शौहर घर आए तो उन्होंने घर का ये हाल देखा तो वो हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ खामोशी इख्तियार किए रखी। आधी रात को मुझे अपने बिस्तर के पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे कान में कह रहा हो कि अभी 40 दिन पूरे नहीं हुए। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर दौलत की वो चमक अब भी मेरे सामने थी। मेरी सास ने सुबह सवेरे ही घर में किसी मौलवी को बुलाने का फ़ैसला किया, लेकिन जिस लम्हे वो मौलवी घर के दरवाजे पे पहुंचा तो उसके कदम वहीं जम गए। वो घर के अंदर दाखिल ही नहीं हो सका और उल्टे पांव वापस भाग गया। उस दिन के बाद से सास और नंद ने मुझसे बात करना बिल्कुल छोड़ दिया। मुझे एक ऐसी औरत समझने लगी जिस पे किसी खबीस रूह का साया है। मेरे शौहर ने भी मुझे अलग कमरे में रहने का कह दिया था, क्योंकि उन्हें भी घर में अजीब सी नहुसत महसूस होने लगी थी। ये 40 दिन मेरे लिए किसी सूली पे लटकने से कम ना थे और मुझे अब ये फ़िक्र खाए जा रही थी कि क्या ये दौलत मुझे मेरे अपनों से भी दूर कर देगी या नहीं। 40 दिन मुकम्मल होने वाले थे और मेरे घर के हालात किसी ख्वाब की तरह तब्दील हो चुके थे। मेरे शौहर की नौकरी ना सिर्फ बहाल हुई बल्कि उन्हें दफ्तर में एक ऐसा बोनस और तरक्की मिली जिसकी हमने कभी तवक्को भी नहीं की थी। वो जो पहले अपने घर के किराए के लिए परेशान रहते थे, अब उन्होंने नए घर का सोचना शुरू कर दिया। मेरी सास और नंद अब मुझसे बराह रास्त उलझने के बजाय दूर से ही मुझे शक और खौफ की मिली जुली नज़रों से देखती। वो समझ चुकी थी कि मेरे मामलात में कुछ ऐसा है जो उनकी समझ से बाहर है। एक दिन माई सुगरा का पैगाम आया कि वो अपना घर बेच के शहर के पोश इलाके में एक आलीशान कोठी में मुंतकिल हो रही हैं। मैंने जब ये सुना तो मेरे दिल में एक अजीब सी लर्जिश हुई। माई अब इतनी अमीर हो चुकी थी कि मोहल्ले वाले अब उनके खिलाफ कोई बात करने से पहले 100 बार सोचते थे। लोग अब उनके घर के सामने से गुजरते हुए भी सर झुका के निकलते, जैसे उन्हें मालूम हो कि इस घर में अब कोई आम इंसान नहीं बसता। मैंने अपने शौहर से कहा कि हमें माई को अलविदा कहने जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी खैर ख़्वाह हैं। मेरे शौहर ने हिचकिचाहट के साथ इजाज़त दी, क्योंकि वो भी माई की उस तरक्की के पीछे का राज कहीं न कहीं महसूस कर चुके थे। हमने वहाँ पहुँचने पे देखा कि माई सुगरा एक सोफ़े पे बैठी हैं। मुझे देखते ही मुस्कुरा के बुलाया और कहा, देखा बेटी, मैंने तुमसे कहा था ना कि वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। मैंने उनसे पूछा कि माई, क्या अब आप खुश हैं? तो उन्होंने एक ऐसी मुस्कुराहट दी जिसमें कोई खुशी नहीं बल्कि एक गहरा खालीपन था। उन्होंने मेरे हाथ पे हाथ रखा तो उनकी उँगलियां बर्फ़ की तरह ठंडी थीं और उनकी आंखों में मुझे वही पुरस्रार साया नज़र आया जो उस रात आम के दरख्त के पास दिखा था। उन्होंने कहा, तुमने भी अब वो रास्ता चुन लिया है जिसका कोई वापसी का टिकट नहीं होता। मैं वहाँ से वापस आई तो मेरा दिल बोझल था कि क्या हमने ये सब कुछ अपनी खुशहाली के लिए किया या फिर अपनी आक़िबत का सौदा कर बैठे हैं। माई की कोठी से वापसी पे मेरे शौहर खामोश थे, मगर उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिससे पहले कभी नहीं दिखी। घर पहुंचते ही मेरी नंद ने पहला सवाल ये किया कि माई ने तुम्हें क्या जादू दिया है जो तुम इतनी खामोश हो। मैंने कोई जवाब न दिया और सीधी अपने कमरे में चली गई। सास ने किचन से ये आवाज़ दी कि देखना, ये सब आर्जी है, एक दिन इसके घर की ये शान और शौकत राख हो जाएगी। उनकी ये बददुआ सुन के मुझे कोई डर नहीं लगा, क्योंकि अब मेरी अलमारी में वो नोटों के बंडल थे जिन्हें ख़त्म करना नामुमकिन लग रहा था। अचार का कारोबार अब माई की ज़रूरत नहीं रहा था, बल्कि वो एक ऐसा ज़रिया बन चुका था जिसके पीछे ना जाने कौन सी ताकतें काम कर रही थीं। मोहल्ले की वही औरतें जो कभी माई पे चोरी का इल्ज़ाम लगाती थीं, अब उनके घर के बाहर लाइन बनाकर खड़ी होती थीं और माई उन्हें अपना वो ख़ास अचार महंगे दामों बेचती थी। मगर उनके इस घर से जाने से पहले एक दिन खबर आई कि माई नहीं रही। माई के जाने के बाद हमारे घर का माहौल बदल गया। एक रात मैंने सहन में बैठे हुए देखा कि वो सूखा हुआ आम का दरख्त जो माई की मौत के बाद स्याह पड़ गया था, उसकी एक शाख पे अचानक
एक छोटी-सी सब्ज़ कोम्पल फूट रही थी। मैंने उसे देख के अल्लाह से दुआ की कि अब हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे। मेरे शौहर ने जब अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया तो सबको हैरत हुई। उन्होंने कहा, अब हम अपनी मेहनत से जिएँगे, ना कि किसी अनदेखे सहारे पर। हमारा वो घर जो दौलत से भरा पूरा था, अब आहिस्ता-आहिस्ता खाली होने लगा, लेकिन हमारा दिल अब पहले से ज़्यादा पुरसकून था। माई सुगरा का वो राज़ अब सिर्फ़ एक कहानी बन के रह गया था जो मैंने अपने बच्चों को भी नहीं सुनाया, क्योंकि मुझे डर था कि ये तजस्सुस कहीं उनकी ज़िंदगी को भी दाँव पे ना लगा दे। सास और नंद के साथ अब मेरे ताल्लुकात में एक सच्चा खुलूस था, क्योंकि अब हमारे दरमियान कोई राज़ नहीं था। मैं आज भी जब कोई पुरानी बातें सोचती हूँ तो मेरा दिल लरज़ उठता है कि कैसे एक औरत की खुददारी और हालात की तंगी ने उसे उस ख़तरनाक रास्ते पे धकेल दिया था, और कैसे मैं भी उसका हिस्सा बन के अपनी रूह का सुकून खो बैठी थी। माई सुगरा की वो दौलत सिर्फ़ एक धोखा था, एक ऐसा शराब जिसके पीछे भागकर हमने अपना घर तो बना लिया मगर अपनी मुस्कुराहटें भूल गए। आज भी जब मोहल्ले में माई सुगरा का ज़िक्र होता है तो लोग उसे जादूगरनी कहते हैं, मगर मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ़ एक मजबूर औरत थी, जिसने वक्त के हाथों मजबूर होकर अपनी किस्मत को खुद ही बिगाड़ लिया था। मैंने अपने बच्चों को सिखाया कि रिस्क में बरकत मेहनत से आती है, ना कि किसी आसेब की गुलामी से। हमारी ज़िंदगी अब एक खुली किताब है और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि हम इस अंधेरे से निकल के रोशनी की तरफ वापस आ चुके थे।